ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಈ ನಮೋ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೋದಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲರ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಮುದಾಯದವರು, ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗದವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಮೋ ಬ್ರಿಗೇಡ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮೋ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಮಧುಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕಿಶ್ವರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. मैं now request मधुपूर्णिमा किश्वर जी kindly come out to the dais. Thank you मैम. मेरे प्यारे भाइयों बहनों देवियों सज्जनों, यहाँ पर सभी आप उपस्थित हैं मधुपूर्णिमा किश्वर जी की एक कहानी में सच्चाई सुनने के लिए, जो मोदी मुस्लिम और मीडिया. आज देश में चुनाव का माहौल है. इस माहौल में बहुत गर्मी है, हवा में भी गर्मी है. आज हवामान भी बहुत गर्म मिजाज का, हर जगह में गर्मी बहुत है. इस गर्मी में चुनाव की गर्मी बहुत हो गई आजकल, और हर जगह हमें ये सुनना पड़ता है कि हम आज देश के लिए एक महानायक श्री मोदी जी बनकर आ रहे हैं. और इससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कोई पॉलिटिकल दल का आदमी नहीं हूँ. आई एम नॉट ए मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, but I am a sympathizer, because I am an admirer of the great leader called Narendra Modi, and a very friend of the Namo Brigade, and that's the reason I am here, because he is one of the leaders we are seeing today who has revolutionized the way the country has to think, how the country has to go forward, what kind of leadership we require, how do we take it forward. It's only one man who can now take this country to bigger heights, and that's Narendra Modi. And that's why today, throughout the nation, you will find unprecedented crowds for his meetings, which is, I think, history in Indian politics. You can never see lakhs and lakhs of people for his rallies, rally after rally, rally after rally. It can be in east, it can be in west, north and south or central. It is only Modi, Modi, Modi. And that's a kind of leadership we require today for this country. And then we are surprised why the tag is attached to him. Such a great leader, such a great popularity, such a great thinking, and why this stigma, I can say, it attached to him. ये दाग, ये धब्बा क्यों है मोदी जी के साथ कि वो मुस्लिम विरोधी है? इसके बारे में मैडम जी उनके पीछे, मैं कहता हूँ हिंदी में, हाथ धोकर पड़ी थी. हिंदी में कहावत है कि हाथ धोकर पड़ी थी. करीबन 15 महीने उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी मैडम, और उन्हें सच्चाई जानकर बाद में ये किताब रिलीज किया है. और इस किताब में सभी सच्चाई है कि मोदी मुसलमान के विरोध नहीं है, मोदी मुसलमान का दोस्त है, मुसलमान का भाई है, और इससे दोस्त, अच्छा दोस्त और कोई नहीं हो सकता इस दुनिया, इस देश में मोदी के अलावा. और ये किताब बयान करती है कि मोदी जी का जो प्यार है, जो भाईचारे है, हर religion से, हर caste से. And that's what we're going to see, and you'll be surprised friends, for 3 times he has won with thumping majority. And still people talk about 2002. After 2002 we had 2 more assembly elections in Gujarat, and every time he has won by 2/3 majority, which clearly shows the popularity of a person. And if he was really against any community, he couldn't have won with thumping majority. And leave it alone, in constituency where there are more than 40% of other population also, the BJP has won in that constituency, which clearly shows that he has love and affection towards humanity. He has love and affection for all religion, irrespective of caste, creed. We have to always say India first. We always say Desh is first, nation first, and that's what his I think slogan is, nation first. And on behalf of all of us here, we are assembled here, I request Vikram Bhatt to extend a floral bouquet and welcome Madam Purnima Kishwar ji for this program. Thank you Madam very much for being here with us today. A warm welcome to you for this warm city of Mangalore. May I also request this great gentleman Naresh of the Namo Brigade, who has been working tirelessly to see that this great leader comes
to govern this country and a great fan of Narendra Modi. So Naresh, I need to hand over a memento as a token of love and affection to Madam Ji. The great youth icon of this country, Swami Vivekananda, Madam. Thank you, ma'am. With these few words, this was the word of introduction. I request Madam Madhupurnima Kushwaha to kindly release her book on this occasion, and then she will speak to us, and after that we'll have a question and answer session. Is it okay, madam? I think I request madam to kindly release her book here in Mangalore. Please get it here. Namo, Namo, Namo. Namamyaham tamuttamam veeram namo nayakam. Thank you, ma'am, for releasing your book in Mangalore and awakening the people what has happened in Gujarat, giving an inside story of what happened in Gujarat in 2002. And to know further about that, may I request you, the stage is all yours, ma'am, and it's all over to you, ma'am. I'm really honored and delighted that I have not had to organize even one program for my book release. Normally क्या होता है कि ऑथर को खुद अपना बुक रिलीज पे फंक्शन करना पड़ता है, लोगों को बुलाना पड़ता है और सारी मेहनत खुद करनी पड़ती है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अलग अलग शहरों में अलग अलग संस्था, अलग अलग ग्रुप इसका रिलीज़ कर रहे हैं। बेंगलोर में ही 3 इवेंट हुए, कल त्रिवेंद्रम में थी, उससे पहले अहमदाबाद में थी, दिल्ली में हुआ, अभी बड़ौदा में होने जा रहा है, उसके बाद बम्बई में वगैरह वगैरह ये चले जा रहा है। और मुझे खुद इस किताब को पहुंचाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही। दूसरा कि दिल्ली में तो मीडिया कवर नहीं करेगा, क्योंकि अभी भी दिल्ली का मीडिया सिर्फ गाली ही देने में इंटरेस्टेड है। इससे पहले कि मैं अपनी बात बताऊं, ये कैसे किताब लिखी गई, क्या अध्ययन है इसमें, मुझे आपने जब ये फूल दिए, हिंदी में ठीक है चलेगा जी, जब फूल दिए तो मुझे याद आया कि आप सबका जो हीरो नरेंद्र भाई हैं, उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर बनते ही एक ये बात सबको बताई। कोई भी आता था उन्हें फूल लेके, या सरकारी फंक्शन में भी क्या होता है, कोई जाता है तो उसको फूल दिए जाते हैं। तो उन्होंने एक नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि ये फूल अगर तुम मुझे देते हो या मैं किसी को देता हूँ तो एक दिन में ये बेचारे फूल कूड़े की टोकरी में चले जाएंगे। तो गुजरात सरकार क्या देती है मालूम नरेंद्र मोदी ने क्या शुरू किया? गैस करो, मुझे बहुत अच्छी बात लगी। गैस करो क्या? प्यार तो किताब दे। वो खुद भी लोगों को बोलते मुझे कुछ देना है, किताब दो, ताकि मैं पढ़ के 10 और लोगों को मैं बांट सकता हूँ, किसी लाइब्रेरी को दे सकता हूँ। और साथ में एक खादी का रुमाल या छोटा सा खादी का, कि खादी प्रमोट करने, क्योंकि महात्मा गांधी से बहुत गहरे रूप से उनका घनिष्ठ संबंध है। और मैं जब अपनी बात पूरी करूंगी तो तब आपको हैरानी नहीं होगी अगर मैं कहूं कि अगर इस देश में महात्मा गांधी की जो सबसे अच्छी बातें, अच्छे संस्कार हैं, अगर कोई समझता है, उसको आत्मसात किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, तो वो शायद नरेंद्र मोदी। मेरे दोस्त जो दिल्ली में है, क्योंकि मैं तो लेफ्टिस्ट सर्कल की उपज हूँ, मेरे दोस्त बहुत से, मेरे कॉलीग्स बहुत से मुझसे आज बात भी नहीं करते हैं, बहुत मोटी मोटी गालियाँ देते हैं जब मैं ये बात करती हूँ। पर जो मैंने बात आपके सामने रखने जा रही हूँ, और या जो इस किताब में जो लिखा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मेरा ओपिनियन नहीं है। कहीं भी इस किताब में मधु किश्वर नहीं कहती कि मैं सोचती हूँ नरेंद्र मोदी ऐसे हैं, ऐसा नहीं। ये 15 महीने लगातार मैंने गुजरात का अध्ययन किया, लोगों की बातें सुनी, इसलिए किताब का शीर्षक
मोदी मुस्लिम्स एंड मीडिया, वॉइसेस फ्रॉम नरेंद्र मोदीज गुजरात। मधु किश्वर की आवाज़ नहीं है, और ख़ासकर मुसलमानों की आवाज़ें हैं, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी। अब मैंने ये अध्ययन क्यों शुरू किया, मैं थोड़ा उसके बारे में भी बताना चाहती हूँ। जब 2002 के दंगे हुए, उससे पहले भी देश में हमें पता है सैकड़ों हज़ारों दंगे हो चुके हैं, और ज़्यादातर कांग्रेस के शासन में हुए हैं। मैंने खुद बहुत से दंगों की तहकीकात की है। 1984 के दंगे में दिल्ली में मैं रहती हूँ, तो रिलीफ कैंप्स में गए, सड़कों में बचाने की कोशिश की, अपने मोहल्ले में सिखों को बचाने की कोशिश की, और वो सब जो अनुभव था, सड़कों पे क्या हो रहा है, कैसे कांग्रेसी नेता सड़कों पे आके गुंडा ब्रिगेड को लेके सिखों के घर जलवाए, ये मेरे आंखों देखी बातें हैं सारी, जो मैंने तब भी रिपोर्ट लिखी थी, गैंगस्टर रूल, द मैसेकर ऑफ सिख्स के नाम से। आप मानुषी की वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं, हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में। वो सिख कम्युनिटी नॉर्थ अमेरिका तक में वो उन्होंने पहुंचाई। इसके अलावा बम्बई के दंगों की तहकीकात मैंने सड़कों पे घूम घूम के बहुत दिन लगा के की। मेरठ और मलियाना के दंगे जब हुए कांग्रेस के शासन में, तब भी मेरठ और मलियाना में हमारी पूरी टीम 10, 15, 20 दिन रही। उसके बाद मैं हर साल जाती रही उन्हीं इलाकों में। जम्मू के दंगे, हैदराबाद, जमशेदपुर, कितने दंगे हुए, और इसी प्रकार एक मायने में कह सकते हैं कश्मीर में भी दंगा ही है, टेररिस्ट दंगा है, उसको भी, उनके हालात को भी अच्छे से बहुत तहकीकात किया। तो मेरी एक आदत है कि मैं कभी भी किसी भी विषय पर बयानबाजी नहीं करती। मैं प्रोफेसर हूँ और मानुषी नाम की एक पत्रिका की एडिटर भी हूँ, और मानुषी संगठन है, मानव अधिकार संगठन कहलाता है, पर हम इसको एनजीओ नहीं बोलते और एनजीओ की तरह चलाते भी नहीं। कभी सरकारी ग्रांट नहीं ली, और कभी विदेशी पैसा, जो आजकल एनजीओ है, फॉरेन फंडेड एनजीओ, वो भी नहीं। हम स्वेच्छा से काम करके, लोगों से स्वेच्छा से डोनेशन जो मिलती है उससे काम चलाते हैं, और इसको रोज़ी रोटी मानुषी को साधन नहीं बनाया। ये सेवा का माध्यम है मानुषी। तो मेरी हमेशा ये आदत रही है, एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होने के तहत, विमेंस राइट्स एक्टिविस्ट होने के तहत, इस देश में जो जहाँ भी कोई समस्या हो, तो मैं टीवी या अखबार से सुनकर बयानबाजी कभी नहीं करती। जब तक मैं किसी समस्या को सीधे देख नहीं, खुद तहकीकात नहीं करती, चाहे वो रूप कंवर सती का मामला हो, चाहे हरियाणा में ऑनर किलिंग्स का मामला हो, खाप पंचायत का मामला हो, या कश्मीर की समस्या हो, या दंगे हो, जब तक मैं फर्स्ट हैंड थोड़ा अध्ययन नहीं करती, मैं कभी भी बयानबाजी या लिखना शुरू नहीं कर देती। इसीलिए 2002 में जब दंगे हुए, उस समय बहुत और काम ऐसे में उलझी थी, कुछ काम जो संगठन के बाकी भी थे, तो मैं जा नहीं पाई। ये तो सोचा था, मैंने भी सोचा था कि दंगे में ज़रूर बीजेपी का और नरेंद्र मोदी का हाथ होगा, ये मैंने भी सोचा था 2002 में। और एक आध जगह लेख में कुछ स्टेटमेंट भी दिए मैंने कि ये बीजेपी को बहुत महंगा पड़ेगा, और जब वाजपेयी सरकार गिरी तो, पर 4-6 लाइनों के अलावा मैंने ज़्यादा नहीं बोला, क्योंकि ज़्यादा कुछ जानती नहीं थी। फिर सोचा था कि दंगों में नरेंद्र मोदी का हाथ होगा, पर इस कैंपेन में मैं नहीं जुटी। 2 कारण थे कि मैं क्यों कैंपेन में, जैसे बाकी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जुड़ गए, मैं इसलिए नहीं जुड़ी। 2 कारण थे। एक तो जैसा मैंने बताया कि जब तक पूरी तहकीकात खुद नहीं करती, मैं कैंपेन में नहीं जाती। दूसरा, जो लोग इस कैंपेन में गए, तीस्ता सेटलवाड, शबनम हाशमी वगैरह वगैरह, मैं इनको बहुत अच्छे से जानती हूँ, सालों से जानती हूँ। और जब इन्होंने शुरुआत की वाजपेयी जी की सरकार के आने से के वक़्त, तब से मैंने देखा कि इनकी गेम बहुत टेढ़ी गेम है। ये कांग्रेस के उठाए हुए लोग हैं, इनके एनजीओ, तहलका मैगज़ीन, कम्युनलिज्म कॉम्बैट, ये सब पूरी एक फ़ौज खड़ी की
कांग्रेस पार्टी ने जब से वाजपेयी सरकार शुरुआत हुई, उसमें मेधा पाटकर का नर्मदा बचाओ आंदोलन भी आ जाता है। ये बहुत से एनजीओस को खड़ा किया बीजेपी को और वाजपेयी को, सरकार को अटैक करने के लिए। और मेरा ये मानना था कि जो भी ह्यूमन राइट्स की बात करता है, मानवाधिकार की बात करता है, इस देश के गरीब के हकों की बात अगर कोई करना चाहता है, अगर आप उस प्लैंक पे, तो फिर आपको पार्टीबाजी में नहीं पड़ना चाहिए। सही को सही, गलत को गलत। और मैं हमेशा इस दृष्टि से चली हूँ कि सही बात दुश्मन की भी मान लो, सही बात गधे की भी मान लो, और गलत बात भगवान की भी नहीं मानो। तो ये सवाल नहीं है कि हमेशा कांग्रेस गलत है या मैं हमेशा कांग्रेस का ही हर वक्त विरोध करना है या बीजेपी को हर वक्त। मैंने बहुत सा बीजेपी के क्रिटिक में भी लिखा है, जब मुझे लगा कि कुछ राजनीति में उनकी बात सही नहीं है तो मैंने तब क्रिटिसाइज भी किया। बट जब ये लोग सब, तीसरा सेटलवाड, मेधा पाटकर, तरुण तेजपाल, तहलका के ये सारी फौज एनजीओस की